for tuning into Mayur Palaskar Fitness. I'm back after a long time. So मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ DMs आए, डायरेक्ट मैसेजेस विद सम क्वेरीज क्वेश्चंस, एंड मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ये रिपीटेड मैसेजेस है और मल्टीपल टाइम्स आए ऑन सोशल मीडिया. तो आई एम शेयरिंग द क्वेश्चंस एंड आंसर्स विथ यू गाइज. आई होप ये क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन आपको हेल्प करेगा आपके डाउट्स क्लियर करने में. सो मैंने ये क्वेश्चन एंड आंसर एक पेपर पे लिखे हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू बिल्ड द बॉडी विदाउट सप्लीमेंट्स? सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू बिल्ड अ बॉडी, अगर आप विदाउट सप्लीमेंट बॉडी बना सकते हैं क्या? So first thing, what is supplement? So supplement is a add-on thing. जब आप 90% डाइट आपका कंप्लीट करते हो, उसके बाद आप जब सप्लीमेंट्स ऐड करते हो, तब वो 10% रिजल्ट्स आपको मिलते हैं. इफ़ यू आर नॉट ईटिंग अ गुड डाइट, देन सप्लीमेंट विल बी अ वेस्ट ऑफ योर मनी, वेस्ट ऑफ द एफर्ट्स. So first make this concept clear. You need diet first, then supplement. And basically, in order to build a good physique, आपको क्या चाहिए? You need good macros. So good macros means you need a good combination of protein, carbs and good fats. So ये तीन चीज़ें आपको चाहिए. You can have these from food also. You can have good protein from food. You can have good carbs from food. You can have good fat from food. So supplement is an add-on. Now the thing is, why mostly people take supplements? So it depends on individual to individual. आपका गोल क्या है, आपको क्या करना है, what you want to be, what you are doing for that. Are you an athlete, are you a fitness model? So it depends on your individual goal. But yes, if you want a good physique, normal physique, then you don't need a supplement. You can fulfill your need from food and all the rest of the things. Like आप फूड के थ्रू आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हैं, if you want a normal good physique. Okay, I hope guys you got the complete visibility on this question. Okay, so let's move toward the second question. So second question is, do abs workout burns more belly fat? To be honest, I used to get this question in every week twice or 3 times, और मोस्टली ये क्वेश्चन मुझे लोग पूछते हैं कि एब्स ट्रेनिंग, अभी मुझे 1 महीने में एब्स लाने हैं, तो मैं एब्स ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं सीक्वेंस कैसा रखूँ और कौन से एक्सरसाइजेस करूँ. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो, बिकॉज एब्स ट्रेनिंग, if you want your abdominal portion visible, then there are 4 pillars है जो आपको समझने पड़ेंगे. So first important thing is nutrition. You have to complete your nutrition in a deficit diet because you want a lower body fat. Okay, second important thing is workout. Third is weight training. Fourth is cardio. You need to complete these 4 pillars. You need to complete the combination of these 4 things. Then slowly, gradually, your body fat will go down and your abs started going visible. It's simple as that. आपने कभी देखा है कार दो पहियों पे चल रही है, कार को चलने के लिए 4 व्हील्स लगते ही है, राइट? So it's a combination of 4 things. As I explained, you need to complete these 4 things. Then gradually आपका बॉडी फैट डाउन होगा और आपके एब्स विजिबल होने लगेंगे, क्योंकि एब्स ये जो एक बॉडी पार्ट है, ये सबके बॉडी के अंदर है. So in order to visible, you need to drop your body percentage. So आप एब्स ट्रेनिंग करने से बॉडी परसेंटेज नहीं डाउन होगा, एब्स ट्रेनिंग करने से आपका एब्डोमिनल सिर्फ स्ट्रॉन्ग होगा. So you need to understand, in order to make abs visible, you need to drop your body fat, and which you can do by these 4 things. So let's move towards third question, guys. Let's see what's the third question. Are nuts healthy or it will create inflammation? So yeah, mostly asked question. थर्ड क्वेश्चन इज, नट्स से आपको हीट होती है क्या, बहुत कुछ इश्यूज होते हैं क्या, इन्फ्लेमेशन होता है? सो नो, नट्स आर डेफिनेटली हेल्दी. नट्स आर सोर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैट, गुड फैट. अनसैचुरेटेड फैट मतलब इट्स अ गुड फैट विच प्रोटेक्ट्स योर ब्रेन, हार्ट, एंड यस डेफिनेटली यू कैन कंज्यूम नट्स. बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, मॉडरेशन में कंज्यूम करें, एक्सेसिव यूज ना करें. सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड. एंड यू कैन हैव आलमंड्स, वॉलनट्स, बादाम खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं,
Badams, almonds are rich in vitamin E and then magnesium. So magnesium having a number of tons of benefits, and vitamin E protects your skin. And also almonds helps to protect your cells from फ्री रेडिकल्स. सो फ्री रेडिकल्स जो है वो आपके अच्छे सेल्स बॉडी में जो आपके गुड टिश्यूज है उनको डैमेज करते हैं, गुड सेल्स है उनको. तो आलमंड्स हेल्प्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्स फ्रॉम फ्री रेडिकल्स. सो यू कैन हैव आलमंड्स. गुड टाइमिंग की बात की जाए तो यू कैन हैव एज अ स्नैक, यू कैन हैव एज बिफोर बेड ऑल्सो आलमंड्स. And walnuts also one of the important nuts. I believe I made a video. I made a video on special video on walnuts. I will put the link in the description. You can go through that to have more clarity on walnuts. Okay, so let's move towards fourth question. So what is the fourth question? Fourth question is about the height. मैं जब छोटा था, when I was a kid, then I also used to think the same. Does workout effect on your height growth? वर्कआउट से आपका हाइट बढ़ना स्टॉप हो जाता है, ऐसा कुछ है क्या? मुझे सवाल भी पूछा जाता है, आज भी पूछा जाता है. सो द आंसर इज डेफिनेटली नो. हाइट्स आर जेनेटिक्स. योर हाइट इज अ जेनेटिकल फैक्टर एंड इट वॉन्ट, इट डजेंट मैटर आप वर्कआउट कर रहे हो या नहीं. आपकी हाइट बढ़नी है तो बढ़ेगी, या जितनी ही बढ़नी है उतनी ही बढ़ेगी. ओके, सो फर्स्ट आप ये क्लियर कर लीजिए. और लेट्स थिंक अबाउट द सेकेंड पर्सपेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन. सो सेकेंड पर्सपेक्टिव ऐसा है कि आपका जो हाइट है वो 15 to 21 एज ड्यूरेशन में ही बढ़ता है. तो डेफिनेटली उस टाइम आपको 2-3 चीज़ें, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, तो 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है. दैट बेसिकली अपनी हाइट जो है वो आपके स्पाइन से बढ़ती है. लाइक तो यू हैव टू मेक श्योर जब भी आप ओवरहेड बारबल प्रेस लगा रहे हो या फिर स्क्वाट्स लगा रहे हो तो आप ज़्यादा आपकी स्पाइन को कॉम्प्रेस ना होने दीजिए. बट इट्स लाइक 1% लोग होंगे उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है. तो यस, एट द एंड ऑफ द डे हाइट्स इज अ जेनेटिक्स एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट डेफिनेटली. एंड कोई गोलियां दवा ये कुछ मत खाइए हाइट बढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है. इट्स अ जेनेटिक. द लास्ट क्वेश्चन इज, कैन वी यूज ट्रेडमिल इफ यू हैव नी पेन? सो गाइज, नी पेन इट्स क्वाइट डिफरेंट क्वेश्चन. अगर आपको नी पेन है तो आपको फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इफ यू आर फेसिंग एनी नी पेन, तो वॉकिंग, जब हम वॉकिंग करते हैं इट्स अ नेचुरल मूवमेंट. इफ यू आर फेसिंग एनी इशू विथ योर नेचुरल मूवमेंट, सो फर्स्ट यू नीड टू कंसल्ट विथ योर डॉक्टर एंड यू नीड टू डायग्नोज द इशू, व्हाट इशू इज देयर. ओके, आपको डायग्नोज करना चाहिए. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जो आपको ध्यान में रखनी है कि यू नीड टू हैव अ गुड फुटवेयर. आपको अच्छा शू पहनना है ड्यूरिंग द वॉक ऑन ट्रेडमिल, so that you can avoid unnecessary stress on your knees. Okay, और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि आपको चेक करना चाहिए कि आपको इशू किस चीज़ का है. कार्टिलेज का इशू है या PCL का इशू है, ACL का इशू है. यू हैव टू फिक्स द इशू फर्स्ट, देन यू कैन थिंक अबाउट दिस ट्रेडमिल. सो आई होप गाइज you got more answers on these questions from me. and आपको अगर कुछ questions है तो आप मुझे कमेंट में बताइए या DM करें कहाँ पर भी. I will try to make another good session with the question and answers to share what knowledge I have gained. So I like to share that and I will definitely share it with you in the next video. So thanks for watching this complete video guys. I'm signing out, Mayur Palaskar.